Great seeing you after a long time. It's actually we spoke, but last I met you was in your office when you were in the Services Control Board, and we had Yeah, come down to Delhi. I think 2006 or seven for the tennis right. Absolutely. army team of tennis. Yes, sir. Yeah, absolutely. I've got Okay. very fond memories of our association at the National Defense Academy when you were Absolutely, there. absolutely, sir. And Chitle sir used to be our captain, and Arjun Chitle was our top player. Yeah, that's right. That's right. Yes, Arjun sir. Chitle. Yeah, A quite very right. good Yeah. family, and Arjun is a great player also. Yeah, absolutely. And good to see you. Yeah, you're keeping in very good health. Thank And you so much, sir. Thanks a lot, sir. this Your blessing, particular sir. this particular initiative of yours after your superannuation from service Sir, and after you hung your uniform, it's a sir, wonderful initiative. Like what Yashmore is doing. People like you. sir, That unfortunately, what is happening is that most of our officers after superannuation, they've got so much of experience with them, loads and loads of experience, and they've got their discipline with them, they've got their convictions with them, they've got their learning and knowledge with them. And I don't know, somehow there is a tendency of keeping it to themselves, either from an attitude of you know complacency or condescension, or probably being too lethargic, or or the typical attitude which one can ascribe to Indians, wherein one says ki yaar, if I have to get nothing out of it, then why spend my energies and my effort in it, you know that sort sir, of a thing. sir, So more and more service officers, if they could come out in the open, and especially with the social media which is there today, it's such a sir. revolutionary thing. My point is, you are Absolutely, sitting in Meerut, I'm sitting in Dehradun, and we sir, are both conversing and we are both seeing each other, sir, and we are able to interact with many other people who join this particular sir, app, the Zoom sir, app. So sir. look at how technology has made it so convenient and Absolutely, so sir. accessible, and Sir, so accessible. sir, Now, despite this, we are yet not being able to give to society. All that we get to see is the dime a dozen military experts who are coming on the panels of mainstream television. absolutely, sir. That Absolutely, isn't plenty. That isn't plenty. sir, Everyone has become a military expert or a defense expert, sir, and they are giving their views and talking. sir, Well, how much of their views are accepted by people, or whether sir, they have any weight in them, that's a matter of conjecture. But sir, the type of things which you are doing is, sir. and I would also include Yashmore in this, Absolutely, because you sir. are the only two people. There must be many others. There must be many others who are Yes, doing sir. the Yes, same sort sir. of a thing. Sir, But you have connected yourself with the right level of society, that is the youth. sir, Now, youth is the future of this country, yeah? And if this youth is going to benefit in game from your sir, experience and from sir, your learning and your knowledge, your discipline, your conduct, sir, and your convictions, your beliefs, your principles, your values, sir. then it's a tremendous motivation. It's an inspiration and a motivation for the youth. Absolutely, absolutely. And what comes to them from you is not bookish knowledge, but knowledge which has been actually applied to, which has been applied to on ground and has been seen for its merit or demerit. Sir, So the point is that experience essentially, well, the best is to have one's own experience, but the other thing is to enlarge your experiences when you can essentially imbibe the experiences of others to imbibe, and then to make your experiences grow. absolutely, sir. Absolutely. And that is what is important, because what troubled me during my service life, ever since Sir, I joined as a second lieutenant,
Sir, was that what was being written in the books by people who had become veterans and had become superannuated, sir, they were trying to tell us as to how we should conduct ourselves in the military sir, uh, on matters of our beliefs, our convictions, and our character-driven leadership. sir. But yet they were the same people who never did that when they were in service. We'll come to all that, sir. No, I'm just Yeah, yeah, I'm just making absolutely, sir. I'm just Now making a that, point with you. absolutely, sir. Now that the audience is more or less there, Yeah, we'll keep them joining, sir. yeah. Uh, boys and girls, today we are lucky to have Brigadier Sarvesh Dangwal, Vishesh Seva Medal, who has spared his time to speak to you a few words about Sir. Sir studied in St. Joseph Convent, Dehradun, and I, being from St. Mary's, Meerut, I am his sister school type to that extent. He is an ex-ND officer who joined 4 Garhwal Rifles, which got the Battle Honor of Nuranang in 1962. I have requested Sir to speak to us about the 62 war also in the due course of time. And this is one war about which we do not know much because things like the Henderson Brooks report never got publicized. I mean, it's bad that our society did not feel it, correct to go public with such things. So, Sir has got a lot of knowledge about military history and the 62 war in particular. So, he'll, expose all of us to these things. Sir fought the 71 war. He joined the physical training corps in 81 and we befriended each other when we were contemporaries at NDA. I was a junior captain, and Sir was a middle service major in 1991. And in 2006, Sir was heading the Army Sports Control Board as a brigadier when I was representing the Army team in tennis as a colonel. Thereafter, Sir had an important assignment as chairman of the Games Technical Conduct Committee of the 4th Military World Games, in which 102 countries participated in Hyderabad in October 2007. Post-retirement, Sir has been a freelance writer for regional papers on topical, social, and good governance matters concerning Uttarakhand as well as the entire country. He keeps sharing his write-ups with me. Sir believes in citizen activism and writes on social media platforms and WhatsApp in English as well as Hindi. Sir is a fitness buff, and some of the students who know me, they consider me a fitness buff. So I would say about 2 gears below Sarvesh sir as far as fitness aspects are concerned. Sarvesh sir is one of the very few seniors who have inspired me in my service life and thereafter also. We have a NDA prayer which teaches us things like to choose the harder right instead of the easier wrong. I found hardly anybody following it. We have a Chetwood motto which talks about that the safety honor of the country comes first, the safety honor of the men I command comes next, and my own ease and comfort comes last always and every time. I mean, these are lofty ideals to live up to, but I didn't find very many people doing that. Sarvesh sir happens to be one of them. When I was doing the staff college course, I heard talks by several distinguished persons, including serving and retired officers. And in that one thing, I noted that the 3 serving chiefs were the only ones who were not given a topic to speak upon. Now, the reason I realized, discerned for myself, was that the 3 chiefs were expected to have the wisdom as well as the experience to decide as to what they should be speaking to us as students. Sarvesh sir has the wisdom as well as the experience to share his experience of joining service, the adventures, lessons learned in training, the challenges and experiences of service life.
Particularly one very important incident of his life where he stood virtually alone. The only support he had was of force. Practically everybody was not there with him. I remember one important thing from Mahabharata. A choice was given to Duryodhan and Arjun to pick between Krishna alone, who would not take up arms in battle, or his entire army. And Duryodhan, as a common sense guy, he chose the mighty army, but Arjun chose Krishna. Now, symbolically speaking, Krishna represents truth. And as we know in the story which goes, truth proved mightier than the entire army. In our lives, we get choices like the one which Duryodhan and Arjun confronted. Often we tend to make Duryodhan-like choices. Maybe after listening to Sir, some of us may be better equipped in making decision choices, harder ones, maybe even riskier ones. I will stop now and request Sir to take over. I will keep posing queries to help the flow going, and thereafter students will be free to pose their questions. Over to you, sir. Thank you, Colonel Nehru. Thank you so much. Very kind of you for the nice words you have said about me and the introduction which you have given me. And I hope that our session today, which we are having with the students of your academy, will be mutually benefiting to both of us. Because it is my very strong conviction that the process of learning never stops. And we continue to learn through our transactions which we make, provided the transactions are truthful. It's very important to understand the reason as to why I am using this word truthful, and therefore, for the benefit of all your students who have joined you on this podcast, I would like to take a pledge and would want your students also to take a pledge. And that pledge would be that whatever we shall speak over here will be truthful and honest. Because unless and until truth and honesty is there in our interactions or in our transactions, then it reduces itself to mere rhetorics. And it reduces itself to mere learning and not wisdom. Wisdom essentially implies the ability to have knowledge which is undergirded by principles and values. So that is a very, very important thing. So now that I've come to you on this particular platform, which has been provided by Colonel Nehru, I would, in my exchanges with you or in my address to you, speak to you very truthfully about what I have experienced in life and the values and the principles which I adopted as a part of my personality. That's very important. I would be speaking in English and Hindi both, and I have great love for my mother tongue, which is Hindi, and therefore I would be jumping from one to the other, if it is all right with Colonel Nehru and you students. So now, switching to our lingua franca, that is Hindi, Colonel Nehru, in his introduction, spoke about my schooling, about my early pre-commissioned training in the National Defense Academy, and thereafter my joining my battalion 4th Garhwal Rifles, which has the battle honor of Nuranang. Nuranang is in
present-day Arunachal Pradesh, and it was in erstwhile NEFA, Northeast Frontier Agency. Till 62, it was known by NEFA, and it had its divisions over there. And NEFA, Nuranang was in the Subansari division of NEFA. So I joined that battalion, and you'll be surprised that we were commissioned on the 14th of November. In fact, we were the ones who were very, very fortunate. We were under training in the Indian Military Academy, and the war clouds were looming. And this was when the refugee exodus had started from erstwhile East Pakistan into India. And we had Madam Indira Gandhi, the RN lady, as our Prime Minister, and we had General Sam Bahadur Manekshaw as the Chief of the Army Staff. Later on, he became a Field Marshal. So he will be addressed by his highest and later rank as Field Marshal. So what a leader. What a leader to have at a time like that. The most sterling quality of Field Marshal Manekshaw was his ability to speak truth to power. He advised Madam Prime Minister when there was a cabinet meeting and a cabinet committee for security meeting in Delhi, and there were issues which were raised by the Prime Minister and cabinet committee on security regarding when the army would be going into Bangladesh, and to essentially put a stop to this exodus of refugees coming over. But the larger plan was essentially to create a country out of East Pakistan, a new country. And Sam Manekshaw told her very categorically, he says, Madam, I'll go to war if you order me, but I can assure you that I will give you defeat rather than victory. What courage! What courage! He told her the reasons thereof, and despite reservations from the members of the cabinet, he stood his ground. He says, look, my business is to fight wars and to give you victory. In war, there are no runners-up. It is my duty as the Chief of the Army Staff of the Indian Army to ensure. And he was also the chairman of the Chief of the Staff Committee at that point in time. That means essentially amongst all the three services, Army, Navy, and Air Force, he was the chairman of the committee which comprised the three services. And he convinced the Prime Minister the reasons thereof. And thereafter, in a record time of 3rd of December, the war started officially with the bombing of the airfields in Amritsar and our western borders. And on the 16th, or probably I think on the 17th of December, we had created a new country, Bangladesh. So we were very, very fortunate at that point. No, sir? Beg your pardon? Your commissioning date was preponed. Yeah, it was preponed by, we were supposed to be commissioning on 14th of December. And we were commissioned on 14th of November. And then we got 14 days of joining time. And on the 29th of November, I joined my unit, which was at that point in Naushera. We were in a defensive deployment in Jhangar, and we were part of 80 Infantry Brigade. And this was, I'm telling you, from the bottom of my heart, this was a God-sent opportunity. One was so thrilled that all the learning, all the training, after all, the very motivation to join the armed forces is to see action, live action, kinetic action during your service. And our deputy commandant was Brigadier Karyappa at that point in time. And he said, from the frying pan into the fire. So literally. And in my case, when I reached my battalion,
I was allotted my platoon, which was number 9 platoon in Charlie Company, on the 1st of December. That means my first contact with my platoon, my subunit, which is a part of a company, was on the 1st of December, when from the base, that is where the battalion headquarters was, I was assigned to Charlie Company, 9 platoon. And the war started on the 3rd of December. And on the 7th of December, I was given an independent mission to go across the ceasefire line and infiltrate into the enemy through the enemy defenses and get the grid reference of their 82 mortars, which were essentially putting harassing fire on our defenses. Now the mission or the task which was conceived by the brigade major, who's the patrol master of the brigade, was, in hindsight, I can say, even at that point in time, with just about 5 days of service, I was wondering what sort of a task is this that I have to infiltrate. You can get this information so easily elsewhere. Absolutely. And Nehru, and imagine Nehru, they're asking me for 6-figure grid reference of the mortar position, which is, essentially giving harassing fire. And the very term harassing fire means that the positions are not permanent. Absolutely. They fire from their secondary positions, they fire from their temporary positions, and they fire once and then immediately once, to avoid being located, they shift. And the thought which came to my mind was that, sir, if I am being assigned a task which is of such a nature, why don't you sort of give me a responsibility to blow them up? Yeah, absolutely. I would rather convert it into a commando mission. If I have reached the location, then it would be better that I sort of do away with those mortars. Yes. And I still remember the mission was that the grid reference was to be got 6-figure grid reference. Imagine, Nehru. Sir. And subsequently, we would get an air sortie through the joint air command, and they would napalm the position. Okay. So one more thing I'll just add. How the hell would you be so confident about the grid reference even if you sat on the point? I know that, but that is what it was. Imagine, it was not for me to question, Nehru. This is what I'm talking. And you being an infantry person yourself, so we are both talking from, in hindsight. But the point is that I was too thrilled. When a mission came by, because that is exactly, the joy of being in the army is that you get to see live action. And it was so thrilling. There was no connect between me and the boys. The boys didn't know me. They didn't want to trust their lives in my hand on a mission as stupid as this. Anyhow, so I was able to invoke their emotions. I was able to, sort of appeal to their legacy of Nuranang and tell them that, look, you are the people who've given the Chinese a bloody nose in the battle which took place in Nuranang, which has now been named as Jaswantgarh. And we went on a mission, and it was another story which I'll join up subsequently. I would definitely like to sort of, give the details of that story, because that's a very interesting one. And but now coming back to my earlier days and my career. So having been educated in a good missionary school, that is St. Joseph's, as you are aware of it, you are from St. Mary's, Meerut. So we had the Patrician brothers, the Irish brothers over there at that point in time. And one thing which we learned from these Irish brothers was, it was tremendous. That was the ability to be able to stand up as a man. There was no question of, sobbing or crying, and they literally had you on the mat and they played with you, they wrestled with you, they boxed with you, they played the worst football, because they are Irish and they
they're accustomed to rugby, and whenever there used to be rains over there, my God, we were 13, 14, 15-year-olds, and these people were stocky as hell, Irish people, and they would be But slamming into us. did Brother Gannon teach you maths? Yeah. Brother Gannon was there. Brother O'Reilly was there. And then Brother Dooley was there. Then Brother Dunny was there. All these people were there. So I they have been taught by all these. Brother Gannon was my class teacher in 10th. So that's what I'm saying. So people ask me even today, they said, sir, that your written and spoken English is very good. I said, thanks to Brother Gannon. Yeah. That is how it is. And all these people, the way they taught us the grammar, the way they taught us the English, the way they told us as to how we should go about writing essays. And this was our learning curve. And from there went to the National Defense Academy. And हम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, गढ़वाल के एक ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हम लोग के यहाँ पे जो है शिक्षा को जो है बहुत महत्व दिया जाता था। तो हम लोग के माँ बाप ने हमको बड़ी अच्छी शिक्षा दी, और हमारे घर परिवार में जो है बड़े अच्छे संस्कार थे। पूजा पाठ वगैरह का जो है एक बड़ा स्वाभाविक सी बात है। तो अच्छे संस्कार मिले हम लोग को हमारे परिवार से। उसके बाद हम लोग जब स्कूल में गए तो वो हमारे संस्कार जो है और सशक्त हुए, they became stronger. Then went to the National Defense Academy. National Defense Academy is nothing but an extension of a public school only. वहां पे वही पब्लिक स्कूल वैल्यूज जो हैं, और क्योंकि उसकी स्थापना भी जो है वो मिस्टर गिब्सन थे, तो उन्होंने जो है ही वॉज JSW होता था पहले, ज्वाइंट सर्विसेज विंग देहरादून में। जब पंडित जी ने इंडिपेंडेंस के बाद ये सोचा था कि एक इस तरह का ट्राई सर्विसेज प्री कमीशन ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, तो वो देहरादून क्लेमेंट टाउन में उसकी स्थापना हुई थी, और उसको उस समय ज्वाइंट सर्विसेज विंग बोलते थे, JSW। तो उसके कमेटी के जो सिलेबस का जो तैयार करने की कमेटी को जिम्मेदारी थी, उसके जो है AN झा, ही वॉज द चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बड़े ही दिग्गज जिसको बोलते हैं कि वेरी लिटरेरी पर्सन, अ पर्सन ऑफ ट्रिमेंडस स्टैंडिंग। एंड along with him was the one of the headmasters who was there in Doon School. Then subsequently he went to be the headmaster of Ajmer, जो अजमेर का स्कूल है उसमें जो है वो हेडमास्टर बने। तो उन लोगों ने जो हम लोगों को उस तरह का रूटीन जो वहां पे दिया था, जिस तरह से उन्होंने करिकुलम दिया था, वो सब एक पब्लिक स्कूल का ही करिकुलम था। तो वहां पे बड़ा अच्छा लगता था। और सवेरे जैसे तुमने मेंशन किया है कि हम लोग की वो NDA प्रेयर थी, तो उस NDA प्रेयर को हम लोग रोज बोलते थे। तो उसमें जो आपने लाइन जो बोली, बाकी चीजों के साथ साथ उस लाइन में ये जरूर लिखा हुआ था कि ओ गॉड हेल्प मी टू डू दी हार्डर राइट दैन दी इजियर रॉन्ग। और ये बात जो है कहीं ना कहीं मेरे जहन के अंदर और मेरे दिमाग के अंदर जो है ये घर कर गई। You took it seriously. I took it too seriously. उसका परिणाम ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि जब मैं मुख्य धारा में आया कमीशन होकर के फौज के अंदर, एक बड़ी भारी अड़चन बन गई है इस कन्विक्शन को, ये प्रार्थना जो कि मैं रोज 3.5 साल तक, क्योंकि मैं NDA में रेलीगेट हो गया था, तो मैं 38 कोर्स से 39 कोर्स में चला गया था। तो 6 महीने आई लॉस्ट माय टर्म ऑन अकाउंट ऑफ एकेडमिक्स। और वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहां पे उस समय हम लोग के टाइम पे करीब 16 या 17 सब्जेक्ट होते थे। तो मैं 17 सब्जेक्ट में से 14 में फेल हुआ था, 3 में पास हुआ था। जवानी का नशा था, वही मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ। व्हाट आई वांट टू शेयर विद देम कि आप ये मत समझना कि जो भी आपको आज हम दिख रहे हैं या आपके सामने जो भी दिख रहा है, वो कोई जिसको बोलते हैं कि दूध से धुले हुए थे और उन्होंने कोई सा गलती कसूर गुनाह किया ही नहीं अपनी जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को मैं और वैलिडेट करना चाहता हूं। NDA के एक बहुत ही आलिम और तरीन कमांडेंट थे, उनका नाम था जनरल इनायत हबीबुल्ला। जनरल इनायत हबीबुल्ला जो थे वो JSW में कमांडेंट थे, और फिर यहां से जो है जब 1956 में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो JSW को जो है खड़कवासला ले गए थे। और जनरल हबीबुल्ला ने NDA की 5 से 6 साल तक कमांड करी थी। और जनरल हबीबुल्ला साहब का आप ये सोचिए, उनकी जो सोच थी, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम किस तरह के अफसर बनाना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर।
व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर, क्योंकि अगर इसको आप नेतृत्व का, लीडरशिप का क्रूसिबल इसको मान रहे हैं या इसका क्रेडल मान रहे हैं, क्रेडल होता है पालना, तो अगर आप इसको लीडरशिप का पालना मान रहे हैं, तो यहाँ पे इन बच्चों को जो है, क्योंकि ये मोम की तरह है, इनको हम जैसा ढा देंगे ये उसी आकृति में ये बन जाएंगे। तो उनका कहना यह था कि हमारा लक्ष्य है नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्म्ड फोर्सेस को इस तरह की लीडरशिप देना जिसका कि आधार जो है, जिसकी धुरी जो है वो नैतिकता हो, धर्म हो। और यहां पे मेरा धर्म से जो तात्पर्य है वो है द विलिंगनेस टू डू दैट विच इज राइट, जो सही चीज है। तो राइटियसनेस का जो है, आप इनको एक आधार दीजिए, इनको बेस दीजिए, इनके अंदर शैतानी भरपूर होनी चाहिए। अगर इनके बच्चों के अंदर शैतानी नहीं हुई, इन्होंने अगर जो है अपना बचपना ही खो दिया, क्योंकि ये अब एक अनुशासित सांचे के अंदर डाल दिए गए हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो हम इन बच्चों के साथ जो है बहुत अन्याय करते हैं। तो इन बच्चों को शैतान होने दो, बदमाशी करने दो, लेकिन क्या नैतिकता का आधार, वहां पे कोई जो है छूट नहीं है, वहां पे कोई माफी नहीं है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो है चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं आपको एक बच्चों में एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, कि ये जो बातें हैं, ये जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मेरा नेहरू एक अपने लिए और मेरे साथ कुछ मेरे साथी थे, हम लोगों ने अपने को एक मोटो दे रखा था, हम बदमाशी करेंगे, गलती करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमको अधिकारी बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, नहीं, हम 90% सही करेंगे, लेकिन 10% हमारी स्वाभाविक, हमारे जो है युवा यूथ है हमारे पास, हमारे अंदर जो है हमारे हार्मोन्स हैं, उस समय एडोलेसेंस में हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर जो है वो ताकत है, हम लोग के अंदर वो शक्ति है। तो हम लोग, स्वाभाविक है कि रूल तोड़ना, और जो आपको बोला जाए कि साहब आपने ये करना है तो उसके खिलाफ जो है करना, ये तो एक स्वभाव होता है बच्चे का। तो हमने ये निश्चय कर लिया था कि हम जो है अगर पकड़े गए तो झूठ नहीं बोलेंगे, सजा ले देंगे। और कई मौके हुए, कई मौके तो ऐसे हुए कि हम जो हैं ज्यादा शातिर निकले, पकड़े नहीं गए। लेकिन जब पकड़े गए तो हमने ये नहीं कहा कि साहब हमने नहीं किया, या हमने हमने जो है झूठ बोल दिया, या हमने किसी का जो है, किसी की बैसाखी का सहारा लेके अपने ऊपर से जो है जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दी। नहीं, हमने कहा हाँ साहब हमने किया, अब आप हमको दंड देना चाहते दे दीजिए, हम उसके जो हैं वो, मतलब हम स्वीकार करते हैं आप जो दंड देते हैं। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद फिर आईएमए में चले गए, और खेल कूद में बड़ा, मतलब हमारा रुचि थी, लगन था, हर एक किस्म के खेल खेलते थे, और पढ़ाई में भी ठीक था। वो जो मेरा पीरियड था एक, उस समय मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था, थोड़ा सा भटक गया था, जो कि किसी के भी जीवन में, किसी की भी लाइफ में ये हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई जो थी, मेरी जो स्टडीज जो थी, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई, और उसकी वजह से जो है मैं रेलीगेट हो गया था एक टर्म। फिर उसके बाद हम आईएमए में आए, आईएमए में भी बड़ा अच्छा रहा सब कुछ, 1 साल की हमारी ट्रेनिंग थी, फिर हमने यूनिट ज्वाइन कर ली। अब हम आते हैं जो इसके उपरांत, जो आपने बोला था नेहरू कि नूरानांग की जो लड़ाई थी, तो हमारी यूनिट जो थी ये 1959 में 7 दिसंबर को ये री रेज हुई थी। मतलब ये 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर ये खड़ी हुई थी, और इसके बाद इसको द्वितीय महायुद्ध के बाद इसको जो है वो डिसॉल्व कर दिया था, क्योंकि उस समय जो है वो कम रेजिमेंट्स बननी थी, और हमारी पलटन को जो है, फोर्स को जो है उन्होंने सेंटर बना दिया, रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में। तो ये री रेज हुई, और इसको री रेज किया हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हसनैन थे, एसएम हसनैन, सैयद मेहदी हसनैन।
तो उन्होंने 7 दिसंबर 1959 में इसको रेज किया। रेज करने के बाद जो है ये हैदराबाद में रेज हुई थी, और उसके बाद ये रामगढ़ आ गई थी। और जब ये रामगढ़ में थी तो उस समय जो है ये 1962 का युद्ध जो है दिस स्टार्टेड। तो वी वो पार्ट ऑफ 62 ब्रिगेड, एंड हम लोगों को जो है जब 7 ब्रिगेड जो है, ब्रिगेडियर डालवी की ब्रिगेड थी 7 ब्रिगेड, जिसमें सेकंड राजपूत थी, जिसमें कि 19 गुरखास थी, जिसमें कि ग्रेनेडियर्स थे, जिसमें पंजाब थी। तो ये पलटें थी, और बड़ा दुर्भाग्य था उस समय जनरल कॉल जो थे, बीएम कॉल, वो सर कोर सर कमांडर सॉरी, बनाए गए थे। सर सॉरी इंटरप्टिंग यू। सर 62 का तो पूरा आपसे सुनेंगे, बिकॉज इट विल रिक्वायर देयर या कॉम्प्रिहेंशन, या दे विल बी या या ओपन टू या इट, यू नो, या and the comprehending the map and all that, it will या take time, and there's so या many things right from the national level. So या you can skip this part and राइट। you can move on, because this will require deliberation, sir. I mean, मेरा मेरा sure, नेहरू कहने का मतलब ये था कि मेरे sure. पास ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर लोग, बच्चे जो हैं मेरे से सवाल करेंगे ना, मैं They ये will कह रहा ask हूं, you questions, sir. They will be अगर asking you अगर questions. अगर अगर वो You then you अगर वो proceed, sir. What suits you, please proceed that way, sir. ठीक नहीं, मैं तो आई एम कंफर्टेबल विद दिस। तो एनी हाउ, तो Sure, 62 की sure, बात जो है उसको हम छोड़ देते sure, हैं। तो sure, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी पलटन ने बहुत अच्छा काम किया था। sure, और इसमें ये भी जनरल कॉल की एक अनटोल्ड स्टोरी है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, बीएम कॉल ने। तो sure. उन्होंने उसमें ये कहा था कि अगर भारतीय सेना फोर गढ़वाल की तरह जो है वो लड़ती, तो 1962 की लड़ाई का इतिहास जो है वो कुछ और होता। तो यहाँ पे मैं इस बात को खत्म करता हूँ, जहां तक कि मेरी पलटन का सवाल उठता है। और फिर मैं 1971 में जो है अपनी पलटन में चला गया था। पलटन में मैंने आपको वो मिशन बताया था। उस Sure. मिशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे 5 मिनट में जो है, Yes, sir. 5 मिनट That will be nice, sir. उसके बारे में बात करूं। तो जब हमारी सिखलाई ये होती है कि जब इस तरह की मिशन में आप जाते हो, तो सबसे पहले आप अपनी मिशन के लिए वॉलंटियर्स चुनते हो। क्योंकि अगर आपके पास वॉलंटियर्स हैं जो कि अपनी स्व इच्छा से आपके साथ जो है वो किसी भी मिशन में जाना चाहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होता है बनस्पत इस पे कि आप किसी को जो है वो जबरन या उसको जबरदस्ती बोलो कि आप मेरे साथ चलोगे। और खास तौर से जहां पे कि जान का खतरा हो सकता है। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग मिशन। ऐसा तो है नहीं कि आप वापस आ जाओगे। तो अब आप ये सोचिए कि मेरी 29 नवंबर को मैं अपने पलटन के बेस में पहुंचा। 1 तारीख को मैं अपनी प्लेटून में पहुंचा, और 7 तारीख को मुझे ये मिशन जो है असाइन कर दिया गया। तो मेरी जो है पलटन के अंदर टोटल नौकरी जो थी वो 8 या 9 दिन की नौकरी थी। और आप इसको बड़े अच्छी तरह से समझेंगे। और ये जो बच्चे सुन रहे हैं, ये अ, इसको अगर ये कॉन्टेक्स्ट करेंगे अग्निवीर के बारे में जब ये बातचीत होती है, Yes, तो sir. वो समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। तो मैंने जब अपने लड़कों से जो है वो पूछा कि भाई, सीओ साहब ने जो है हमको ये जिम्मेदारी दी है, हमको एक मिशन में जाना है, और हमको जो है वो दुश्मन के जो फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज हैं उनके थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके हमको ये टास्क है। और आप में से कौन मेरे साथ इस पेट्रोल में आप चलना चाहेंगे? तो करीब प्लेटून की नफरी जो है उसमें हमारे स्पेशलिस्ट डिटैचमेंट्स थे। एमएमजी का डिटैचमेंट था, और 57 आरसीएल का डिटैचमेंट था। तो सबके ऐसे सर नीचे हो गए, किसी ने मेरे से आंख नहीं मिलाई। आई कांटेक्ट तो अवॉइड कर लिया आई सबने। कांटेक्ट, हाँ, आई कांटेक्ट बिल्कुल जो है वो, कि अगर आंख से आंख मिला दी तो हो सकता है कि हमें ही जो है बोल दिया जाए। आप ताज्जुब करोगे, किसी, नॉट अ सिंगल वन वॉलंटियर्ड। तो फिर एक स्वाभाविक जो था मेरे पास, बिकॉज आई वॉज कमीशन इन टू गढ़वाल रेजिमेंट, आई एम अ गढ़वाली माई सेल्फ। और मुझे जो है अपनी जो मदर टंग थी वो आती थी, गढ़वाली जो है। तो मैंने फिर उस गढ़वाली भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ एक रैपो एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। और उस गढ़वाली भाषा में मैंने उनको फिर बहुत दुत्कारा। दुत्कारा इन द सेंस, उनको ये कहा कि हमने तो सुना था कि आप लोग 62 की लड़ाई के शूरवीर हो, जिन्होंने कि चाइनीज को जो है उनके छक्के छुड़ा दिए थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। और आज जो है हमको ये मौका मिला है इस मिशन में जाने का, और आप में से कोई भी जो है वॉलंटियर नहीं हो रहा है इस मिशन में मेरे साथ जाने के लिए। तो फिर कुछ ना कुछ
कहीं ना कहीं उनके जो है वो जहन में थोड़ा सा उनको शर्म तो महसूस हुई। तो तीन लड़के, एक मेरे को अभी भी उनके नाम याद हैं, एक था लांस नायक गब्बर सिंह, एक था राइफलमैन जीत सिंह, और एक था राइफलमैन जमन सिंह। राइफलमैन जमन सिंह जो है वो सेंटर से सितंबर में ही जो है वो रिक्रूट से सिपाही बन करके हमारी पलटन में आया था। तो ही वॉज एब्सोल्यूट नॉविस, मतलब उसको कुछ पता नहीं था। He was like you और ये, only. हाँ बिल्कुल मेरी तरह था, मेरे से भी, मतलब हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो तो राइफलमैन था, तो Yeah. ऑब्वियसली उसका जो लेवल था मोटिवेशन का और उसकी जो Yes. एजुकेशन Yes, थी sir. वो हमारे से कम स्तर की थी। बट एनी हाउ, नॉट विथ स्टैंडिंग, तो इन तीन लड़कों को हमने लिया। और हम लोग जब निकले अपने मिशन में, रात के अंधेरे में, सबसे पहले जो है ये सारी चीजें जो है हमको देखनी पड़ती हैं बड़ी अच्छी तरह। मतलब मेरे अंदर तो इतनी एक्साइटमेंट थी, इतना उत्साह था मेरे अंदर कि आप पूछिए मत। और साहब फाइनली हम जो है, जब हमारा वो समय आया, तो हम लोग जो है अंधेरी रात में जो है, बिकॉज यू हैव टू मेक नाइट योर फ्रेंड। जितना बढ़िया आपका प्रशिक्षण होगा उतना ही अच्छा आप परिस्थितियों को जो है अपने हक में जो है उनका प्रयोग कर सकेंगे, सदुपयोग कर सकेंगे। बारिश पड़ रही है, आंधी पड़ रही है, दुश्मन जो है सोच रहा है कि कोई नहीं आएगा, और उस समय आप उसको अचंभित कर दो, तो दैट इज सरप्राइज। तो हम लोग जब निकले तो उसके बाद हम लोग के उसमें एक प्रक्रिया होती है कि जब आप दुश्मन के डिफेंसेस के पास पहुंचते हो तो लिसनिंग ड्रिल्स करते हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत एहसास हो, मालूम पड़े कि दुश्मन के गैप्स कहाँ पे हैं डिफेंसेस में, जहां से कि आप जो है इन्फिल्ट्रेट, घुसपैठ जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है करने के लिए आपको कुछ तरीके होते हैं जो कि फौज के अंदर बेसिक आपकी सिखलाई में आपको सिखलाए जाते हैं। तो हम लोग जब उनके डिफेंसेस के बिल्कुल पास पहुंच गए, तो हम लोग ने लाइन पोजीशन इख्तियार करी, और हम लोगों ने अपना ईयर टू द ग्राउंड जिसको बोलते हैं रख करके, और ये पता लगाने की कोशिश की, प्रयास किया कि कहाँ पे आवाज आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। और हम ये कर ही रहे थे, उतने में जमन सिंह जो था मेरा रेडियो ऑपरेटर था ANPRC 25 के साथ, उस समय सेट होते थे, तो भारी सेट होते थे। और उसके पास क्योंकि सेट था उसके पास, तो उसके पास मैंने जो है वो पुरानी 9mm SMC होती थी, स्टेन मशीन कार्बाइन, वो दे रखी थी उसका लोड ऑफसेट करने के लिए। अब जमन सिंह जो है नया, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, वो नौसिखिया था, नया रिक्रूट था, सितंबर में ही आया था। इनको हम जो है पलटन के अंदर काचा बोलते हैं, काचा, काचा मतलब कच्चा, ही इज नॉट परिपक्व नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है अभी तक। और हम लोगों ने लाइन पोजीशन दे रखी थी, और ये मेरे पीछे था, ऑन मेरे राइट शोल्डर के पीछे। ऑल ऑफ अ सडन एक गोली चल दी, और वो गोली जमन सिंह की स्टेन मशीन से थी। अब ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में सरप्राइज इज दी, जिसको बोलते हैं कि क्रिटिकल क्रिटिकल फैक्टर। अगर सरप्राइज खो दिया आपने, आप तीन आदमी हो, Yeah. दुश्मन आपके सामने जो है भारी संख्या में है, आप कैसे अपने टास्क को जो है संभव कर पाओगे? आपको तो उसको, तभी उसको घुसपैठ कहते हैं कि चुपचाप आपने जाना है। और आप विश्वास नहीं करोगे नेहरू, ये गोली जो है मेरे सर के ऊपर से, क्योंकि ये मेरे And पीछे था। you are gathering information by stealth. वी वर वी वर टू गैदर इंफॉर्मेशन बाय स्टेल्थ, और स्टेल्थ ये होगी। Stealth हो गई. अब ये जब गोली चली, और वो पूरा वहां पे सन्नाटा था, रात का टाइम, बिल्कुल चुपचाप, सिवाय शेर वन शेर टू वहां पे गांव होते थे, वहां पे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ये फीचर जो था, ये फीचर था ताई फीचर, इसको हम ताई डिफेंडेड लोकेलिटी के नाम से जानते थे, एनिमी की। इसको दुश्मन ने ऑक्यूपाई कर रखा था, कंपनी उनकी, कंपनी हेडक्वार्टर एंड प्लेटून वाज डिप्लॉयड हियर, और बाकी कंपनी उनकी जो थी वो उनकी डेप्थ में डिप्लॉयड थी। अब तो साहब हमारे ऊपर जो है नेहरू जिसको बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो है वज्रपात हो गया। पूरी लोकेलिटी, जो उनकी जो क्या कहते हैं फ्लैंकिंग लोकेशंस थी, वहां से HMG खुल गई हमारे ऊपर। अच्छा, जब ये गोली चली, आई रियलाइज कि अब तो हमारा सरप्राइज खत्म हो गया।
जब हमने ये रियलाइज किया कि हमारा जो है वो सरप्राइज खत्म हो गया, तो मैंने जीत सिंह को और जमन सिंह को बोला, मैंने कहा अपने चेंबर के अंदर राउंड भरो और सिमुलेट एन अटैक। एक आप अटैक सिमुलेट करो, let us simulate an attack so that we are able to draw the fire of the enemy defended locality upon us. ये भी आपको मालूम है कि जब हम किसी भी टास्क में जाते हैं तो एक हमारा प्राइमरी टास्क होता है, एक सेकेंडरी होता है। अब प्राइमरी टास्क करने के तो लायक हम थे नहीं, क्योंकि हमारा सरप्राइज खत्म हो गया था। सेकेंडरी हमारा टास्क ये था कि दुश्मन के ऑटोमेटिक के डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी लेके आना। तो उसको हासिल करने के लिए हमने उनके ऊपर एक अटैक सिमुलेट किया। जब हमने उनके ऊपर गोलियां चलाई तो वी वर एबल टू ड्रॉ फायर फ्रॉम द इंटायर एरिया, जो उनकी कंपनी का एरिया था, और उसके अंदर उनकी एचएमजीज थी। और एचएमजीज का मैं आपको ये कह रहा हूं नेहरू, कि वो हर एक 5 राउंड के बाद, आप तो जानते ही हैं, उनका ट्रेसर लगा रहता है उसके अंदर। ट्रेसर 5 राउंड के बाद एक ट्रेसर बुलेट होती है, तो वो दिखती है आपको। सो फ्रॉम दैट यू मेक आउट एज टू व्हाट इज द एग्जैक्ट अलाइनमेंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बुलेट विच इज कमिंग एट यू। तो साहब हमारे ऊपर मोटर के बम, हमारे ऊपर आर्टिलरी की शेलिंग, डीएफ, हमारे ऊपर स्मॉल आर्म्स फायर। मेरा तो, मैं लाइन पोजीशन में था तो मेरे सामने एक छोटा सा पत्थर था, पत्थर। तो मैंने जो है उस पत्थर के पीछे अपना सर रखा। दैट स्टोन वॉज द फिक्स्ड लाइन ऑफ द एलएमजी ऑफ ए पाकिस्तानी सेक्शन। अब उसके पत्थर के ऊपर आप समझिए कि मैगजीन पे मैगजीन आ रही है, वहां से रिकोशे हो रही। आई वॉज लिटरली, जिसको बोलते हैं पिन डाउन, मैं वहां से हिल ही नहीं सका, क्योंकि वो गोलियां उस पत्थर पे लग रही हैं। अच्छा, अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं जो है अपने को क्रॉल करके राइट में चला जाऊंगा, तो राइट में देयर इज ए क्लिफ, एक क्लिफ है जो कि बिल्कुल स्टीप उसकी कटिंग है। आई वुड हैव फॉलन डाउन द क्लिफ एंड ब्रोकन माय लिम्स। As it is, I would have been a gone case. The best thing for me was to just lie dogo. Fortunately for me, that stone became एक saving grace भी बन गया, but at the same time, the lesson to be drawn from that is कि किसी भी prominent निशान के पास आड़ मत लो। देखिए, मतलब ये सिखलाई है। अब वैसे अगर आपको कोई बोले कि किसी भी प्रोमिनेंट निशान के पास आप आड़ मत लो, तो आप कहोगे यार क्या बोल रहे हैं ये, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मी प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम एनिमी फायर। बट इन डूइंग दैट, दो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे ऊपर गोली नहीं लगी, सारी गोली उस पत्थर पे लग रही थी, बट आई वॉज पिन डाउन, आई कुडंट मूव फ्रॉम देयर, मैं वहां से हिल ही नहीं पाया एज अ कमांडर। अब हमारे ऊपर पहाड़ों में क्या होता है नेहरू, फिर उस समय मेरे को ये मालूम पड़ा सो अर्ली इन माय करियर, कि जब हम कहते हैं ना कि अटैकर जो होता है पहाड़ों में, जब वेपन आपका हाइट पे प्लेस्ड होता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी होती है कि प्लंजिंग फायर जो है, तो अगर आप खड़े भी हो जाओ ना 6 फुट, तो आपके जो है गोली नहीं लगेगी, आपके ऊपर से निकल जाएगी, आप डेफिलेट हो जाओगे। उसमें जो शब्द है डेफिलेट। अब इसके बाद क्या हुआ नेहरू, ये फायरिंग हमारे ऊपर कम से कम 15-20 मिनट तक, आप सोच लीजिए 15-20 मिनट, इट मींस हेल ऑफ अ लॉट, मैगजीन पे मैगजीन। और इन्होंने फिर स्टार शेल मार दिया, दे फायर्ड अ स्टार शेल। स्टार शेल होता है जिससे कि पूरा एरिया इल्यूमिनेट हो जाता है। वो स्टार शेल जब ऊपर गया और वो राइट ट्रेजेक्टरी में फायर नहीं हुआ था, तो जब नीचे आया नेहरू, उसके अंदर कुछ उसका इंसेंडरी जो था वो बचा हुआ था। उससे जो है दिसंबर में जम्मू कश्मीर की जो घास है सूखी, बिल्कुल उसमें आग लग गई। अब वो जब आग लगी और हवा का रुख जो था वो मेरी तरफ, आप समझ रहे हैं, समझ रहे। धीरे धीरे करके साहब गोलियां भी चल रही हैं और आग भी लगी हुई है। अब हम लोग यही कहते हैं कि चीजें क्यों दिखती हैं, हम लोग को एक बेसिक सिखलाई होती है ना, फील्ड में। तो ये होता है कि भाई आपको हरकत नहीं करनी है। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं हरकत नहीं करूंगा, जहां पे हूं वैसा ही रहूंगा। एक तो एनिमी की मशीन गन फायर हो रही थी उस पे, और दूसरा जब आग लग गई है तो एनी मूवमेंट विल बी स्पॉटेड बाय द एनिमी। और एनिमी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे से 75 गज दूरी पे एनिमी की डिफेंसेस थी, 75 यार्ड्स। अब वो आग जब लगी धीरे 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 करके, तो वो मेरी तरफ आने लग गई।
और जब वो मेरे इतने करीब आई नेहरू कि आई स्टार्टेड स्मेलिंग माई ओन फ्लैश। जैसे होता नहीं है कि आप जो है मुर्गे का या मटन का जो है, जब उसको आप तंदूर के ऊपर रखते हो, तो जब उसके ऊपर आंच लगती है तो धीरे 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 करके जब वो गर्म होता है तो उसमें से आपको जो है फिर उसकी वो एरोमा आता है। वही चीज मैं महसूस कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था। दैट इज द टाइम आई जस्ट प्रेड इन माई ओन हार्ट। आई सेड, ओ गॉड, टेक दिस फायर अवे फ्रॉम मी। और आप विश्वास नहीं करोगे, अब ये बड़ी मतलब ये कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि ये तो होता है, आपका अपना विश्वास है। हवा का रुख बदला और हवा जो है वो दूसरे सिरे की तरफ, मेरे से दूर, ऊपर की तरफ, दुश्मन की तरफ जो है वो हवा बढ़ गई। अब उसके बाद जब आग जो है आगे चली गई मेरे से, मैं आग के खतरे से बच गया, तो फिर मुझे ये चिंता थी कि मेरे लड़के कहाँ हैं, 3 लड़के। हाँ, अब आप ये बात फिर इस बात को आप रिलेट कर सकेंगे कि एक अफसर का जब वो किसी पलटन के अंदर आता है तो उसका ये लक्ष्य होता है कि इस पलटन में अब आ गया है, इस पलटन की कमांड करके ही वो फिर जाएगा, और इस ये पलटन इसका जो है परिवार है। एब्सोल्युटली। इसका हर नुमाइंदा, इस पलटन का हर शख्स जो है वो आपके परिवार का हिस्सा है। उनकी देखरेख करना, उन उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी आपकी है। अब यही विचार मेरे मन के अंदर चल रहे थे। मैंने कहा यार मैं तो आ रखा हूं यहाँ पे इन लड़कों को लेकर के, और ये है कहाँ, वेर आर दे, नॉट टू बी सीन। कहीं आवाज में उनको दे रहा हूं, जमन सिंह, गबर सिंह, जीत सिंह, कुछ नहीं, नो रिस्पॉन्स। मैंने कहा या तो गोली लग गई है, देव डाइड, नाउ आई हैव टू इंश्योर ऑल्सो, हाउ कैन आई। अब आप सोचिए नेहरू, विथ व्हाट फेस विल आई गो बैक टू माय बटालियन। बहुत शर्म आएगी। मैं मैं अपनी पलटन में किस मुंह के साथ जाऊंगा। तो जब आग भी ठंडी पड़ गई, पाकिस्तानियों की तरफ से गाली गलौज हल्ला वगैरह, उनकी फायरिंग भी जो है वो, उन्होंने सोचा कि दे हैव बीटन बैक द अटैक, उनको ये लगा। वो भी जब खत्म हो गई फिर मैं खड़ा हुआ, और फिर मैंने वो इलाका जो है उसको छाना, उसको मैंने देखा। कहीं नहीं मिले मेरे कोई लड़के, आई कुड फाइंड देम नोवेयर। फिर हमारा जब रूट आउट जो था ना नेहरू, तो उस समय वहां पे एक टूटा हुआ मकान पड़ता था स्लोप्स में, तो वो हमारा एक बाउंड था, बाउंड। तो हम लोग, अब ये बच्चे पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, तो रूट आउट जाती समय ये होता है कि अगर जो है हम किसी भी एम्बुश पे फंस गए या किसी भी खतरे में आ गए, तो हम जो हैं इमीडिएटली उस एम्बुश को तोड़ करके उस बाउंड में एक दूसरे को मिलेंगे, ये पहले से निर्धारित होता है। तो मैंने वो उनको बाउंड दे रखा था अपने रूट इन के टाइम पे, तो मैंने सोचा शायद वो उस बाउंड में गए होंगे। आप ताज्जुब करोगे, जैसे ही मैं उस बाउंड के पास पहुंचा, वो टूटा हुआ मकान था, उसके ऊपर आरटी की डीएफ शेलिंग, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मेरी 2-3 गोले उसके ऊपर पड़ गए। मैंने कहा इट्स पॉइंटलेस नाउ गेटिंग इनसाइड। मैंने कहा अगर इसके अंदर हैं ये, तो ये खत्म हो गए होंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा मेरे ऊपर भी पड़ जाएगा। मैंने कहा इसमें अकलमंदी तो है नहीं, कोई बहादुरी तो है नहीं। तो मैं वहां से फिर वापस आ गया। देन आई अगेन ट्रेस्ड माई स्टेप्स बैक टू वेयर द कंप्लीट थिंग हैड टेकन प्लेस। मेरे को ये कहीं नहीं मिले, मैं हताश हो गया, मैं निराश भी हो गया। मैंने कहा यार ये इधर से यहाँ, ना तो यहाँ है ना ये यहाँ पे हैं, ये हैं तो है कहाँ। ना मुझे कोई कर्राता हुआ या कोई वुंडेड या किसी की आवाज कुछ नहीं सुनाई दी। फिर जिसको बोलते बिल्कुल अंधेरी रात, और आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और उसमें अंधेरी रात में क्या हुआ, आई गॉट कॉट इन अ बोल। एक ऐसे करके ना वो फीचर जो था, उनके डिफेंसेस के बाद जो एक फीचर था बोल, और मैं उसी बोल में फंस गया। आई डेंट नो वेयर एग्जैक्टली वर माई डिफेंसेस, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो फिर हमारे बैटरी कमांडर होते थे, बीसी होते थे मेजर भरदन, तो वो सीओ के साथ थे। सीओ हमारे विक्रम शमशेर भंडारी थे, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल। तो उन्होंने कहा सर, वो लगता है ना तो लड़के के साथ रेडियो कांटेक्ट है, ना उसके साथ कोई संपर्क है। लगता है कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं दिक्कत में हैं, मुश्किल में हैं, फंस गए हैं। इनको तो यही नहीं पता चल रहा होगा कि इनको जाना कहाँ है। तो उसने स्टार शेल फायर किया हमारे डिफेंसेस के ऊपर।
जब उसने स्टार शेल फायर किया तो मुझे जो हमारे डिफेंसेस की सिलुएट जो है वो मुझे दिख गई। नजर आई, दिख गई। देन दैट बिकेम अ डायरेक्शन फॉर मी कि मेरे को ये डायरेक्शन जो है अपनाना है। तो मैं उस डायरेक्शन में फिर चलने लग गया। अब मैं अकेला वापस आ रहा हूं, ये भी मन के अंदर मेरे डाउट है कि लड़के कहाँ हैं 24 घंटे, दिस थिंग इज प्लेइंग इन माई माइंड। दूसरा ये भी है कि इफ देर इज एन एम्बुश, हाउ एम आई गोइंग टू फाइट दैट एम्बुश। तो मैंने 2 ग्रेनेड अपने हाथों में लेकर के, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वेपन, आपके पास स्टैन गन रहती है, स्टैन गन से क्या करोगे आप। तो मैंने 2 ग्रेनेड मेरे हाथ में थे, तो उसके जो रिंग्स थे वो मेरे थम्स के अंदर थे ऐसे, और मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा अगर कहीं कुछ भी इस तरह का हुआ तो मैं इमीडिएटली वो करके और ग्रेनेड जो है वो 2 छोड़ दूंगा, उसमें चाहे हम भी निकल जाए, डजंट मैटर। You are almost a fidayin at that time. हाँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल वो जज्बा था दिमाग के अंदर। खैर नेहरू, मैं करीब 3:45 बजे करीब में अपने, हमारा जो है वो डिफेंसेस थे हमारे टेका बहादुर में, और हमारी जो एक प्रोटेक्टिव पेट्रोल थी, सेक्शन पेट्रोल, वो थी कविराज में। कविराज में इट वाज एचलॉन, एचलॉन में फीचर था, तो वो कविराज में थी। तो जैसे ही मैं कविराज में पहुंचा तो वहां पे सेंट्री ने मुझे चैलेंज किया। तो मैंने उसको सेंट्री को जो है फिर अपना पासवर्ड बताया। तो सेंट्री, मुझे अभी भी उसका नाम याद है, राइफलमैन श्याम सिंह। श्याम सिंह वॉज द सेंट्री। तो जैसे ही मैंने उसको पासवर्ड दिया तो उसके मुंह से एकदम से निकला, साहब आप आ गए। तो मैंने कहा हाँ श्याम सिंह, मैंने कहा लड़के कि साहब वो पहुंच गए हैं। सो दी What a बॉयज, relief. ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस सेंस ऑफ, मैं ये कह रहा हूं आपसे, वो लड़के जब इतनी भयंकर फायरिंग के अंदर आए नेहरू, और आप इन्फेंट्री के हो, मैं भी इन्फेंट्री का हूं, ये तो किसी भी इन्फेंट्री पलटन के लिए मतलब सबसे शर्मसार बात है कि आप अपने अधिकारी को छोड़ करके वापस आ जाओ। Sir, Kalsia mein, I had almost a similar thing in 1984 when I had gone with a mixed patrol of Gurkhas and my own troops of my battalion. और वहां पर हम डेफिलेटेड पोजीशन में आ गए थे. वी हैड टू रन बैक टू अप स्लोप, एंड व्हेन वी रैन बैक and I came to our side of the slope, I found I was the only one and no one else had reached because I was the fittest. पर वो हल्के हल्के जब सारे आ गए तो I also had a lot of sense of relief, so I can relate absolutely, sir. एब्सोल्युटली। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, अब जब ये वहां पहुंच, अच्छा वहां पे क्या हुआ था, जब जब ये लोग यहाँ पहुंच गए थे तो ये लोग करीब 1.5 या 2 घंटे पहले पहुंच गए थे। कलसिया, झंगाड़ा और एडजेसेंट लोकेलिटीज, सर. हाँ हाँ, हम लोग फिर उसके बाद वीवर, Yes, sir. उसके बाद जो है वी वर देन पुल्ड आउट फ्रॉम देयर एंड वी हैड कम टू गढ़ी। तुमको याद होगा 80 हाँ, ब्रिगेड गढ़ी में बेस गढ़ी है जो थी, 8 किलोमीटर पीछे. करेक्ट। तो Yes, sir. गढ़ी में जो था वो हम लोग रिजर्व थे, 80 ब्रिगेड का वी वर रिजर्व। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ब्रिगेडियर कॉल, ही वाज द ब्रिगेड कमांडर, आर्टिलरी के थे ब्रिगेडियर कॉल, राइट। तो जब ये लड़के वापस आ गए और इन्होंने रिपोर्ट दी, ऑब्वियसली एडजुटेंट को रिपोर्ट दी होगी कि साहब हम तो बड़ी बुरी तरह से फायरिंग के नीचे आ गए, और साहब मुश्किल ही है कि डंगवाल साहब जो हैं वो बचे होंगे, मुश्किल ही है वो बचे होंगे, क्योंकि इतनी भयंकर फायर हो रही थी साहब, और उनके तो वो तो एलएमजी की फिक्स लाइन में थे, तो वो तो छलनी छलनी हो गए होंगे। तो सीओ वॉज नेचुरली एनी कमांडिंग ऑफिसर, तुम लोगों ने क्या किया। तो पलटन में तैयारी हो रही थी, एक हमारे साथ वाले थे शॉर्ट सर्विस के सेकंड लेफ्टिनेंट पांडे, उमेश चंद पांडे। तो उनको जो है बोला सीओ ने कि पांडे आप जो है एक पेट्रोल को रिगअप करो, और ये 3 लड़के अपने साथ जो आए हैं, जो गए थे डंगवाल के साथ, इनको अपने साथ ले जाओ। आई वॉन्ट डंगवाल्स बॉडी बैक, मैं ये नहीं चाहता कि डंगवाल की बॉडी जो है वो उनके पास आ। आप समझ, मतलब ये बिल्कुल निश्चित था कि हम गए, आई हैव गॉन। बट व्हेन आई रीच्ड देयर and then immediately I came on the set and gave a report to the adjutant, there was a sigh of relief from everyone. It was a wonderful experience. इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था नेहरू कि मेरे को अपने पूरे 10 साल की सर्विस के अंदर इससे बेहतर जो है एक्चुअल वॉर फाइटिंग का या वॉर सिचुएशन का मेरे को तजुर्बा या एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग भी जो है व्हेन झंगर से फिर हम लोग कारगिल, हमारी यूनिट मूव कर गई थी। तो वी वर इन द सेम प्लेस वेयर दी 1999 का जो कारगिल ऑपरेशन जो था, हम लोग शैनीगुंड में थे,
एंड आई वाज इन अल्फा टेकड़ी, पंजाब टेकड़ी, ये बड़े फीचर्स थे वहां पे दराज के बगल में। तो दैट इज व्हाई आई कुड रिलेट सो वेल। जब 1999 की कारगिल लड़ाई के बारे में जब कहानियां आई और लोगों की दिलेरी और जानबाजी के बारे में हमारे शूरवीरों की गाथाएं जब हमको सुनने को मिली, आई कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इट वाज अ इम्पॉसिबल टास्क। एंड दैट इज द रीजन कि आई एम so unforgiving towards those people who brought this situation upon us. ये कहना बहुत आसान है कि साहब हम कारगिल जीत गए, हम कारगिल जीत। अरे साहब आपने, including the DM who told you to find out the 6 wicket reference. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब आप ये सोचिए, अगर 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 ब्रिगेडियर, अगर सेकंड लेफ्टिनेंट डंगवाल खत्म हो जाते, इट वाज ऑल राइट, इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि चले गए, खत्म हो गया, इट इज ऑल राइट। आप सोचिए, एक व्यक्ति अगर जाता है किसी परिवार से, उस समय तो हमारी फॉर्चुनेटली शादी नहीं थी, आई वाज अ यंगस्टर ओनली, माँ बाप भाई बहन दादा दादी नाना नानी, पूरा परिवार जो है आपका, इट्स अ, मतलब कोई सेलिब्रेशन का टाइम तो नहीं है। और अगर इस तरह की the task is what is मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं तुमसे कि अगर कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, टास्क ऐसा हो जिससे कि तुमको ये महसूस हो कि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। अरे बेवकूफी का टास्क, तुम किसी को जो है बेवकूफी, तुम नेहरू, यू कैन रिलेट वेरी वेल टुडे दैट व्हाट अ स्टूपिड टास्क। तुम्हारे बच्चों को मेरे ख्याल से ये समझ, तुम्हारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि आप मैथ के 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, एक मोटर का हैरासिंग फायर जहां से आ रही है हमारे डिफेंसेस के ऊपर, आप साहब एक पेट्रोल भेज रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो टू द डिवीजन कि आपके ब्रिगेड सेक्टर में कुछ हरकत हो रही है। यू आर वेरी वेरी एग्रेसिव, यू नो, एग्रेसिव पेट्रोलिंग बोलते हैं ना, एग्रेसिव पेट्रोलिंग। तो ये ग्लॉसरी जो है बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं उसी तरह से कह रहा हूं कि जब मैंने देवेंद्र की, सुरेंद्र की, और जो हमारा बच्चा है मनीष भटनागर की, इनकी जब मैंने कहानियां सुनी और आपके साथ शेयर किया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि यार हम लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। वी कैनॉट बी, आई एम सॉरी, कोर कमांडर मतलब आपके वहां बैठे हुए हैं, डिव कमांडर आपके वहां बैठे हुए हैं, चीफ साहब आपके वहां बैठे हुए हैं, आपको बताया जा रहा है लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। 527 लोग आपने मरवा दिए, हर एक व्यक्ति के साथ 6 से 8 लोग जुड़े हुए हैं। जस्ट इमेजिन उन परिवारों में क्या हुआ होगा यार। तो आप किसी कॉज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से 62 में जो 7 ब्रिगेड का हुआ था ना, ब्रिगेडियर डलवी की ब्रिगेड का, आई एम टेलिंग यू, वीके सिंह की पलटन थी, सेकंड राजपूत वहां पे। नेहरू, वो बात करेंगे हम जब उसमें आएंगे 62 के ऑपरेशंस के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ उसके बारे में। अरे वहां पे तवांगचू रिवर है, रिवर में ब्रिजेस हैं, उन ब्रिजेस को डिफेंड करने के लिए आपने डिप्लॉयमेंट पूरा का पूरा ब्रिजेस के ऊपर कर रखा है। दुश्मन जो है थागला रिज पे बैठा हुआ है और वो आपके ऊपर आटे की दे दबादब आपके ऊपर फायरिंग करता है और आप जो है वहां पे बैठे हुए हो। एंड उस समय आप सोचिए, ब्रिगेडियर डलवी की जो किताब है हिमालयन बंडर, उसमें उनका एक वाक्य है, सेंटेंस है, विच आई वांट टू रिपीट ओवर हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ द बॉयज हु आर हियरिंग दिस पॉडकास्ट। ही सेज इट टेक्स मोर करेज टू बी अ कावर्ड, it takes more courage to be a coward than to give up your life. What did he mean by that? What he meant by that was, उनको जब लोगों ने ये कहा कि डलवी साहब ये तो टैक्टिकली इनडिफेंसिबल था, मतलब इट वाज इम्पॉसिबल टू डिफेंड द ब्रिजेस बाय सिटिंग ऑन द ब्रिजेस। करेक्ट। तो उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे कोर कमांडर साहब ये कह के गए थे कि चाइना जो है हमसे लड़ेगा नहीं, ये सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है, तुम यहां से नहीं हिलेगा, You will not withdraw an inch. ये जो चीज थी डलवी के माइंड में प्ले कर रही थी कि अगर मैं यहां से विड्रॉ करके और पीछे हाइट्स में आ गया और मैंने जो है टेनेबल डिफेंसेस ऑक्यूपाई कर दिए और वाकई में चाइना ने जो है वो अटैक नहीं किया, तो मेरी जो है क्या रेपुटेशन होगी? मेरी रेपुटेशन ये होगी कि ब्रिगेड कमांडर डर के मारे ब्रिजों को छोड़ करके जो उसको आदेश दिया गया था उस आदेश का पालन नहीं किया और पीछे आ गया हाइट्स में अपने को बचाने के लिए। दिस इज हाउ वी रीड, दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट।
तो ये आप देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि इट टेक्स मोर करेज टू बी अ कावर्ड देन टू डाई. And even a तो platoon commander understands that to defend a bridge, you don't sit on the bridge. एब्सोल्युटली. अरे मैं ये कह रहा हूं कि उसका जो एक सूबेदार, इसने जो क्या कहते हैं, शिव कुणाल वर्मा की जो किताब है द वॉर दैट वाजंट, उसमें उसने एक सूबेदार दशरथ के बारे में बताया है. सूबेदार दशरथ क्वेश्चनड कोर कमांडर व्हेन ही केम. साहब वो बुलाया गया, पूरे के पूरे बटालियन के ओ ग्रुप को बुलाया गया, तो उसमें जो है सूबेदार दशरथ भी आ रखा था वहां पे. तो सूबेदार दशरथ हैड द करेज टू आस्क जनरल कॉल, कोर कमांडर, कि साहब ये तो हमने पहली बार देखा है कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, हम नीचे बैठे हुए, और हमको जो है ये डिफेंड करना है, कैसे? सो देन जनरल कॉल वाज वेरी अनॉयड विथ हिम. ही सेज तुमने ये भी पहली बार देखा होगा कि एक कोर कमांडर फॉरवर्ड एरिया में आ रखा है. ये ही सेड दैट, and he wanted Dashrath to be very, sacked immediately. But then, the commanding officer Rikhi was the commanding officer of Second Rajput. But what I'm saying, Nehru, the point to understand is 19 GR Colonel Ahluwalia और ये रिखी था इसका सेकंड राजपूत, they were finished यार, खत्म, पलटन खत्म. हमारी 9 पंजाब भी थी ना वहीं सर. आपकी 9, बिल्कुल आपकी 9 पंजाब भी थी और ग्रेनेडियर्स भी थी. तो एनी वो बात कभी बाद में करेंगे. तो मेरा फिर ये कहने का मतलब है नेहरू, अब इस बात से आगे बढ़ के हम ये कहते हैं कि बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ना, बच्चों क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली इन माय करियर आई वाज डूइंग वेरी वेल इन माय करियर. आई स्टूड फर्स्ट इन माय जेसी कोर्स. जेसी कोर्स एक बड़ा अच्छा कोर्स होता है, कंपनी कमांडर के लेवल का कोर्स. और उस कोर्स में मुझे जो है सबसे ऊंची ग्रेडिंग मिली, और ग्रेडिंग के अलावा मुझे प्रथम स्थान भी मिला. और बाकी कोर्सेज में भी जो है मैं बहुत अच्छा कर रहा था, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग थी मेरी सभी कोर्सेज में. लेकिन मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ा महाभारत चल रहा था. वो महाभारत था, आई कुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज. ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ हो गई, और ये एक धीरे धीरे मेरे साथ एक बहुत बड़ी अड़चन अड़चन बन गई थी मेरे आर्मी के करियर में. मुझे ये पक्का मालूम था कि काबिल होने के बावजूद भी, सक्षम होने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि मैं जो हूं वो गलत करने के लिए राजी नहीं होऊंगा, और वो मेरे फिर करियर का अंत हो जाएगा. दैट विल बी द एंड ऑफ माई करियर. सो आई वॉज एवरी एवरी डे आई वॉज वेकिंग अप टू फाइंड माई सेल्फ, डिस्कवरिंग माई सेल्फ. मैं हूं कौन? मैं वो सर्वेश डंगवाल हूं जो कि एनडीए की प्रेयर में टू डू द हार्डियर राइट की प्रेयर जो है रोज बोलता था. मैं वो सर्वेश डंगवाल हूं जो अपने सिद्धांतों के ऊपर खड़ा होना चाहता है. मैं वो सर्वेश डंगवाल हूं जो कि अपनी गलती को स्वीकार करके सच बोलना चाहता है. मैं कौन हूं? हु एम आई? या मैं वो सर्वेश डंगवाल हूं जो कि किसी प्रलोभन की वजह से अपने सिद्धांतों को, अपने मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज करता हूं कि यार ठीक है, यहाँ पे इसमें मेरा जो है हित है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने को कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ. यहाँ पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे हित को जो है कोई परेशानी नहीं होगी या उसके ऊपर कोई आघात नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे जो है बहुत ही नियम और कानून वाला व्यक्ति बन सकता हूँ. तो फिर मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि आई थिंक इट इज बेटर दैट आई गेट आउट ऑफ दी. मैंने तो बल्कि जब मैंने अपने पेपर्स पुटअप किए थे तो मेरे जीओसी थे टैमनी, जनरल टैमनी थे मेरे 16 डिव में जीओसी. तो उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा कि यार तुम इतना बढ़िया कर रहे हो, तुम क्यों, तुमको मतलब आज की तारीख में तुमको अपने स्टाफ कॉलेज की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये अलग कीड़ा आ रखा है, तुम्हारा करियर इतना बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है. तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर मैं बड़ी उसमें हूँ, असमंजस में हूँ. मैं अपने साथ जो मेरे अपने सिद्धांत हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपने को अपने से बेहतर, मैंने कहा मैं अपने को आपसे बेहतर पहचानता हूँ. आई नो माई सेल्फ बेटर देन वॉट यू नो मी. आप मेरा बाहर देख रहे हैं, मैं अपना अंदर और बाहर दोनों देख रहा हूँ. मुझे मालूम है कि मेरे अंदर क्या कौतूहल चल रहा है अंदर ही अंदर. तो
मैंने कहा सर अगर मैं पढ़ा लिखा होता, उस समय एनडीए में ग्रेजुएशन भी नहीं होता था, हम लोग जब एनडीए से निकले तो इंटरव्यू इंटरव्यू हमने तो नहीं किए। जेएनयू की डिग्री ली है सर। आप लोगों ने तो जेएनयू। तो मैंने उनसे आपने यही ली। कहा, मैंने कहा सर अगर मैं बाद में कमीशन हुआ होता, तो मुझे अगर डिग्री मिली होती, तो मैं किसी स्कूल में अध्यापक बन जाता, वो मुझे ज्यादा मंजूर था बनिस्बत इसके कि मैं इस तरह के एक आडंबर में अपना जीवन बिताऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी जगह के लिए जो है लागू है, बट ये डिपेंड करता है आप कितने सेंसिटिव हो। आई वॉज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टूवर्ड्स ऑल दीज मैटर्स, एंड दैट बिकेम, वो जो एनडीए की प्रेयर जो है ना, जो आप बात कर रहे थे, वो मेरा कारण बनी टू गेट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम इन्फेंट्री इनटू द एपीटीसी। तो मैंने 30-31 साल की उम्र में, जबकि आफ्टर ऑल फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स इज अ फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स, तो मैं ओवर एज भी हो गया था, क्योंकि उसमें जो है आर्मी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, आर्मी ऑर्डर के मुताबिक, उसमें यह था कि आप 28 साल की उम्र से कम हो गए, क्योंकि इट इज अ वेरी डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग कोर्स। तो उसके लिए मैंने अलग से जो है वेवर लिया। ब्रिगेडियर जोन्स तो जो थे, वो उस समय आर्मी हेडक्वार्टर्स में डीडीजीएमटी थे, तो उन्होंने मुझे फिर वो स्पेशल वेवर दिया एज का। फिर मैंने वो कोर्स किया। ब्रिगेडियर दर्शन उस समय कमांडेंट होते थे एआईपीटी में। तो वो करके फिर रिक्विजिट ग्रेडिंग वगैरह मुझे जब मिली, तो फिर मैं ट्रांसफर हो गया 81 में, जैसा आपने कहा। और उसके अंदर भी जो है वो बड़ा अच्छा रहा, मैंने बहुत काम किया। और मैंने काम इसलिए किया, ऐसा नहीं कि मैंने इन्फेंट्री में जब मैं था फो गढ़वाल में, या जब मैं स्टाफ में था तो तब मैंने काम नहीं किया। लेकिन अब मैं उस जिम्मेदारी में था, उस क्षेत्र में था जिसमें कि मेरे को रुचि थी। आई लव्ड फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मेरा ही क्षेत्र था। मतलब मेरा जो वातावरण था, एनवायरनमेंट था, ये बिल्कुल अनुकूल था, ये मेरी प्रवृत्ति के बिल्कुल अनुकूल था। और रैंक जो था वो कोई बहुत बड़ी इशू थी नहीं, करियर कोई बहुत बड़ा इशू था नहीं, क्योंकि उस समय जो है वो सीनियर मोस्ट रैंक जो था वो हमारे कोर में एक फुल कर्नल होता था। बिल्कुल करना होता तो था। फुल कर्नल होता था। तो हमने कहा ठीक है यार, अपना जो अच्छा लगता है उसको करो, एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्विस, कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज मच एज यू कैन। उसी दौरान फिर मुझे जो है वो एक स्टडी ग्रुप हुआ था, उस स्टडी ग्रुप का मुझे फिर मेंबर बनाया गया, बिकॉज ऑफ, उन्होंने जब मेरे कोर्स ग्रेडिंग्स वगैरह देखे होंगे, तो उन्होंने कहा यार तो सबसे पढ़ा लिखा आदमी तो यही है पीटी को क्या। You are the most educated chap in the PT core by a huge margin. ह्यूज बात है। तो And that was उन्होंने something which struck me about you when I first interacted with you in NDA. मैंने कहा यार ये पीटी कोर में रेड स्टॉकिंग वालों में डांगवाल सर कहाँ से आ गए? तो नहीं, मुझे सब कहते थे, जब मैंने सेंटर्स में भी नौकरी करी तो मुझसे यही कहते थे, चाहे वो जनरल एरी हो, चाहे वो क्या कहते हैं मराठास में था। मैं 2 सेंटर्स में मैंने नौकरी करी, एक ग्रेनेडियर्स में और एक मराठास में। तो चाहे वो मराठा के जो है जनरल सतपुते हों, कहते थे यार तू हमारी उसमें आ जा। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है कि मेरे को गढ़वाल से कोई मेरे को शिकायत है या शिकवा है, गिला शिकवा नहीं है। मैं इस महकमे में रहना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी एक जैसे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत होगी कमांडिंग ऑफिसर के साथ जो है किसी भी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि आपका जो है इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो एक बड़ा भारी आपका मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंस्ट्रूमेंट। I will share a very light aside with you on this. आपने कमांडिंग ऑफिसर की बात की। When I was a junior company commander, मेरे सीईओ जो थे वो बैंड का ड्रेस लेना था, तो वो 2IC को और 3 कंपनी कमांडर्स को लेके गए सेलेक्ट करने के लिए सर, वो क्लॉथ शॉप पे। तो सर मैंने रियलाइज किया कि कपड़ा सीईओ देख रहे थे और मैं देख रहा था। जो 2IC और 2 कंपनी कमांडर थे वो सीईओ का देख रहे थे कि सीईओ को कौन सा पसंद है कपड़ा। तो दैट इज हाउ लाइफ इज सर। एब्सोल्युटली। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो फिर हमने स्टडी ग्रुप किया नेहरू, एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग। मतलब आप ये समझिए पूरी आर्मी का जो एक आपकी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, बाबा आदम के टाइम से, आप उस सिस्टम को जो है पूरे को बदल रहे हो। उसमें आपके इवैल्यूएशन टेस्ट थे, आपका जो है रिक्रूट टेबल कार्ड था, आपका ट्रेन सोल्जर्स का जो बैटल फिजिकल ट्रेनिंग थी वो था उसमें। और इसके लिए अब मेरा तो बैकग्राउंड था ही नहीं, फिजिकल एजुकेशन का बैकग्राउंड था आपने नहीं। इसको प्रेजेंटेशन भी दिया था एनडीए में हम सब लोगों को। करेक्ट, हाँ मैंने किया था उससे पहले। खैर, तो एनीहाउ, तो
फिर उसके बाद जो है मैंने फिर सबसे पहले जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, उस समय कर्नल संधू होते थे, कमांडेंट AIPT, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर, मुझे आप 3 महीने तक समय दे दीजिए, मैं अध्ययन करके समझना चाहता हूं कि ये विषय है क्या, व्हाट इज द सब्जेक्ट। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है कि आप एक चले अच्छा खासा सिस्टम जो कि चला आया है, जिसने 71 की लड़ाई जीती, 65 की लड़ाई जीती, 62 की लड़ाई लड़ी, 47 में जो है लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के टाइम पे द्वितीय महायुद्ध में, प्रथम महायुद्ध में, ये सब युद्धों में यही सिस्टम था। और अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस सिस्टम को बदलो। तो मैंने कहा मेरे पास आधार होना चाहिए, आई मस्ट हैव तर्क, लॉजिक, रीजनिंग। किस बेसिस पे मैं ये कहूंगा कि ये सिस्टम जो है इससे बेहतर है। तो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही सेज ओके। तो नेहरू, मैंने अपने को कमरे के अंदर बंद किया और मैं रात दिन अध्ययन करता था फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में। और जगह जगह के सिस्टम्स थे, चाहे वो अमेरिका का सिस्टम हो, इंग्लैंड का सिस्टम हो, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हो, चाइना का सिस्टम हो, रशिया का सिस्टम हो। और वैसे भी जनरली जिसको कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन या फिजियोलॉजी के बारे में, आई न्यू नथिंग एंड आई वॉज मेकिंग माई नोट्स एंड आई वॉज रीडिंग। सवेरे अपनी वर्जिश करता था 2 घंटे, 2 घंटे की वर्जिश के बाद नहा धो करके अपने कमरे में आता था, और फिर करीब 6-7 घंटे अध्ययन करके अपने नोट्स वगैरह बना करके ऑन द 90th डे आई वेंट टू दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सर स्टडी आपने रूम। स्कूल में बायोलॉजी था आपका सब्जेक्ट सर? हाँ हाँ, बायोलॉजी था, बायोलॉजी था। दैट इज वाई, दैट इज वाई बायोलॉजी की वजह से थोड़ा बहुत मतलब, बट दैट वाज एट अ वेरी No, it becomes very important. Otherwise, you don't वेरी, understand. या एब्सोल्युटली। तो उसके बाद जो है दैट ऑफ कोर्स डेफिनेटली हेल्प। तो उसके बाद जो है फिर मैं उनके पास गया, मैंने उससे फिर अपना ये कहा कि सर, अब मेरे मन के अंदर ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़े। आई वॉज एबल टू गिव अ लेआउट प्लान टू हिम कि हम किस तरीके से इसमें प्रगति करेंगे। और हमने ये निश्चय कर लिया था, ये निर्णय कर लिया था कि हम जो है हर चीज को, जिसको हम बदलने के लिए रिकमेंडेशन देंगे, अनुमोदन देंगे, उसको हम जमीन पे पहले ट्राई करें। वी विल ट्राई इट ऑन द ग्राउंड। ऐसे नहीं, हवाबाजी नहीं कि साहब Not पढ़ like लिया। Agnipath scheme. हाँ, नॉट लाइक अग्निपथ, नॉट लाइक अग्निपथ। हमने कहा जमीन पर। दैट इज द रीजन नेहरू, उस स्टडी के अंदर में, उस स्टडी के बारे में कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत विस्तार में है। Absolutely. पर मोटे तौर पे ये कहना चाह रहा हूं कि उस समय जनरल सुंदर जी चीफ थे। जनरल सुंदर जी के बाद जो है फिर जनरल रॉड्रिक्स आए। जनरल रॉड्रिक के टाइम पे ये फाइनलाइज, ये स्टडी, और 91 में ये इंप्लीमेंट हुई। और उसके बीच में जो है कई प्रेजेंटेशंस हुए, जो हमने प्रेजेंटेशन दिए DGMTs को। और कई आर्मी कमांडर जनरल BC जोशी मुझे जो है एट अ 1-to-1 लेवल, जब ये उनको मालूम पड़ा कि इस तरह का जो है कुछ प्रयोजन हो रहा है, तो उन्होंने मुझको बुलाया। मैं एनडीए में था उस समय, PTO। तो आई यूज्ड टू गो टू सदर्न आर्मी कमांडर के पास जाता था। तो ये सब बातचीत करके तो फिर हमने जो है ये स्टडी जो है इसको पूरा किया। और उसके बाद जो नया रिवाइज सिस्टम ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग था इंडियन आर्मी के अंदर, और इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग सिस्टम आपका BPT का और PPT का, ये आया। और ये आज तक है, एंड इट इज स्टिल देयर, इट इज हाँ, स्टिल देयर। अब ये हो गया, उसके बाद फिर एनडीए से हम IMA पोस्टिंग आ गए। IMA में फिर वो घटना घट गई जिसमें कि एक जेंटलमैन कैडेट टेक्निकल ग्रेजुएट थे, उनका नाम सुजीत कर्माकर था। वो स्विमिंग पूल में नॉन स्विमर थे, वो जानते नहीं थे। तो टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो आते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, दे कम एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। उनको जो है, उनको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। दे कम एज टेक्निकल ग्रेजुएट्स, कम इनटू दी IMA एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। आज की तारीख में तो सेकेंड लेफ्टिनेंट रैंक खत्म हो गया है। तो अब उनको जो है, अब तो सभी को जो है लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है IMA से। बट ये लोग जब आते हैं तो ये अपनी सीनियोरिटी जो है, टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो है, ये अपनी सीनियोरिटी जो है ट्रेनिंग पीरियड में एज लेफ्टिनेंट शुरू करते हैं। तो ये बेचारा सुजीत जो था, ये भोपाल का था, इसके फादर जो थे BHEL में थे। मैं उस समय जो था वो PTO था। यकायक जो है वो वीक स्विमर्स की ट्रेनिंग हो रही थी। अब बड़े क्लियर स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कि साहब आप ये करोगे, जैसे रेंज के स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब सवाल ही नहीं है कि रेंज के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में आप अपना दिमाग जो है इस्तेमाल करके और उसको इंटरप्रेट करें। वो तो एक पत्थर की लकीर है, उस खाके के अंदर ही रहना है आपने। आप उससे दाएं बाएं जा ही नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट। उसी तरह से स्विमिंग पूल में होता है।
जहां भी मतलब ट्रेनीज को जान का खतरा होता है या किसी को भी जान का खतरा होता है, उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स का उल्लंघन हुआ, वायलेशन हुआ, ट्रांसग्रेशन हुआ, लड़के की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उसके बाद फिर आपको मालूम ही है कि किस तरह से कवर अप एक्शन होता है। उसके ऊपर जो है फिर बड़ा भारी एक कवर अप एक्शन हुआ। अब मेजर डंगवाल जो एपीटीओ थे उस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी के, ही वॉज द लोन वॉइस जिन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, सच्चाई ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, सच्चाई इससे अलहदा जिन्होंने है। एनडीए की प्रेयर नहीं भूल पाए थे। इंडिया वो मेरे वो वो आज तक, तभी मैंने अपने उसमें डीपी में उसी को लगा रखा है, क्योंकि वो जो है, वो इंडिया की प्रेयर जो है, आई थिंक वो मेरे को सबसे अच्छी और बेहतर तरीके से मेरे को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, बहुत अच्छी तरह से। वही लाइन सिर्फ, द हार्डर राइट इंस्टेड ऑफ द इजियर रॉन्ग, बस खत्म। अब वो फिर एक बड़ा भारी बवंडर हो गया। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एक मेजर जो है, और चाटुकारों की कमी नहीं होती है, पूरे चाटुकार जो हैं उन्होंने लीपापोती करना शुरू कर दिया कि साहब कमांडांट का अगर आदेश है तो हम सच को झूठ और झूठ को सच बना के रखेंगे। हमारी काबिलियत इसमें है कि हम गलत को सही और सही को गलत कर दें। लेकिन आई हैड माई ओन कन्विक्शंस, आई हैड माई ओन बिलीफ्स। मैंने कहा नहीं, मेरे ऊपर फिर जो है वो फौज की बड़ी ड्रेकोनियन जो है, आपको मालूम है आर्मी एक्ट कितना ड्रेकोनियन है। जब तक कोई इस आर्मी एक्ट के बीच से गुजरा नहीं है तब तक वो एहसास नहीं कर सकता है कि ये कितना खतरनाक वो 63 है। आप ही होगा सर। उसमें मैं 63 लगाया होगा आपने भी। हाँ 63 लगाया मैंने। तो वही है जिसके अंदर वो सबको जो है वो, तो उन्होंने एक इनसबॉर्डिनेशन का मेरे ऊपर लगाया था, क्योंकि मैंने डिप्टी चीफ को जो है, जो डिप्टी कमांडेंट थे, उनको अपने पत्र में जो है लिखा कि साहब ये झूठ है, कमांडेंट जो है ये पूरी की पूरी इंक्वायरी को डॉक्टर करना चाह रहे हैं, इसको कवर अप करना चाह रहे हैं, सच्चाई इससे अलहदा है। वो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि साहब आप जो है वो संस्था के प्रति बेवफा हो। आप देखिए, आप शब्दों का प्रयोग देखिए, आपकी साहब लॉयल्टी नहीं है संस्था के प्रति। मैंने कहा साहब मेरी संस्था के प्रति लॉयल्टी तो जरूर है, लेकिन उससे भी ऊपर एक लॉयल्टी है सच्चाई की तरफ। वो एनडीए पर फिर आ गई। नहीं, संस्था के प्रति लॉयल तो आप ही अकेले थे। करेक्ट, मैंने यही नो कहा। प्रॉब्लम। मैंने कहा महोदय, जो कुर्सी जिसमें आप अधि अधि अधिसत हैं, वो कुर्सी जो है सही को जो है गवाह देती है कि सही करो, उसके प्रति है वफादारी। आपके व्यक्तित्व की तरफ नहीं है वफादारी, उस कुर्सी की तरफ। तो अब मेरे ऊपर फिर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग हो गई शुरू, नेहरू। अब फौज का आप देखो ना ड्रामा, मेरा कहने का मतलब, मैं 3 साल तक बीजी सेंटर रुड़की में अटैच था। आपके ऊपर कितना बड़ा स्टिग्मा है। मेरे को जो है हर जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया। और मेरे इससे बचने के लिए आप पीटी कोर में गए थे कि ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। तो अब बीजी सेंटर में चले गए, वहां पे साहब थॉट मस्ट हैव स्ट्रक यू कि इससे तो यार वो 4 गढ़वाल में ही चलते रहते हैं। क्या चीज, हाँ इससे बिल्कुल 4 गढ़वाल बिल्कुल, में ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कह रहे नहीं हो, मेरे को उसमें कोई भी मलाल नहीं था, आई हैड नो रिग्रेट्स। सा। बट ये जरूर था, आई वॉज फीलिंग बैड इन माई हार्ट कि हमने आज तक ये सुना था कि सच जो है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। यहाँ तो पूरी संस्था जो है, संगठन जो है, सच को जो है दबाने में लग गया है। अब जब तक आप उसका निष्कर्ष जो है, यू सी द प्रॉब्लम इन दिस, व्हाट कहते हैं नेहरू कि दो सबसे सशक्त सेनापति, धैर्य और समय काल, द टू ग्रेटेस्ट वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। हर चीज का टाइम आए, सच जो है वो अपने समय पर उजागर होगा। उसको जो है ये झूठ का जो ये पूरा का पूरा प्रपंच है, ये पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं कि एक प्रपंच है, उस प्रपंच से निकल करके उसको आना है। उसके लिए उसको समय चाहिए, इट रिक्वायर्स टाइम। एंड सेकेंडली, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। बिकॉज अगर आपके अंदर धैर्य नहीं हुआ तो फिर फायदा नहीं है। फिर सच जो है, जब तक वो जो है
वो उठ करके आएगा और उभरेगा, तब तक आप नहीं होगे. Then you will not be there to be standing there to embellish and to illuminate the truth. तो खैर anyhow, to cut a long story short, अब बच्चों से सवाल जवाब करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. मेरे को 7-8 साल लग गए. मेरा रैंक भी जो है इन्होंने छीन लिया मेरे से. मतलब सब कुछ जिसको कहते हैं, इस तरह से पड़ता है आपके पीछे ऑर्गेनाइजेशन कि डीवी डायरेक्टरेट जो है वो मेरे पीछे पड़ गया. डिसिप्लिन एंड विजिलेंस वाला जो है आपका डायरेक्टरेट आर्मी हेडक्वार्टर में. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लिए अप्रूव बैठा हुआ था 91 में. यहाँ 98 हो गया. 98 तक भी 7 साल गुजर गए, कुछ नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं. कोर्ट मार्शल से बच करके आए तो आर्मी कमांडर सेंट्रल आर्मी हमसे ये कहते हैं कि भाई आप कारण बताइए. शो कॉज नोटिस दे दिया कि आपके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्यों ना लिया जाए. मैंने कहा यार, आप मुझे कोर्ट मार्शल नहीं कर पाए. आपने जो है मुझे 5 साल तक मेरे को इधर से उधर आपने जो है मेरे ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास किया. मेरे को आपने मजबूर किया दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे को वेकेट किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, फौज ये कह रही है कि हमने अफसर के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं करी. यहां तो द प्रोसेस इज बिकम मोर देन द पनिशमेंट. यही तो लोग कहते हैं कि द प्रोसेस इज मोर देन द पनिशमेंट मी लॉर्ड. तो 7 साल, अच्छा उसके ऊपर जब मुझे फाइनली बरी कर दिया, जिन लोगों ने ये प्रपंच रचा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं. तो दिस इज वेयर जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो मार खा जाता है. जो लॉ की प्रक्रिया है हमारे देश के अंदर, उसके अंदर कोई इस तरह का वेक्सेशियस जस्टिस को बोलते हैं कि आपने अगर अपने सत्ता का, अपने ओहदे का मिसयूज करके किसी दूसरे को प्रताड़ित किया है, और वो मालूम पड़ा बाद में कि वो तो जो है वो पाक साफ है, वो तो ईमानदार है, वो So तो other गुनाहगार नहीं than है. family, was there anyone else who was standing beside you मेरे फादर जो थे, ही वॉज in the अंडर. organization? मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन को. Other than your family, was there anybody who was standing along with you ना in the ना ना organization? ना 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 ना, सवाल ही नहीं. नो. बाकी लोग बेचारे, तो मेरा कहने का मतलब मतलब है स्टैंडिंग इन द से. आपने अर्जुन की तरह सच को चुना और अकेले ही चुना, देयर वाज नो वन. नो and वन that too मतलब लोगों cannot ने. hold wield arms. मैंने मैंने चीफ से, जन शंकर रॉय चौधरी चीफ थे, मैंने उनको ये बात पूरी बताई. जनरल जोशी होते थे उस समय डीजीएमटी, मैंने उनको ये बात बताई. जनरल बीसी जोशी होते थे, मैंने उनको ये बात बताई. बट दे वर हेल्पलेस. दे सेड कि ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, ये तो अपना अपने अपने धार में जो है ये बहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते. वी कैन डू नथिंग अबाउट इट. दिस इज वॉट इट इज. तो वहां से निकल करके आए. बट एनी हाउ, आई बिकेम अ बेटर पर्सन. मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी से. इतना कुछ सीखा, मेरा कहने का मतलब है मेरे पास दो ऑप्शंस थे. या तो मैं हताश हो जाता, या मेरी हिम्मत टूट जाती, या मैं जो है डिस्गस्ट में ये सब चीज छोड़ छाड़ के आई वुड हैव बिकम टोटली नेगेटिव एंड टोटली, जिसको बोलते हैं, इनहिबिटेड. लेकिन नहीं, मेरे को गुरु मिल गए, आध्यात्मिक गुरु. ऋषिकेश में एक दिव्य जीवन संघ है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो शिवानंद जी ने एस्टैब्लिश किया है. तो उनके साथ जो है आईएमए में, उनके एक स्वामी जी थे अध्यात्मानंद जी, वो आईएमए में योगा का जो है, जिस तरह से क्लब्स होते हैं ना, क्लब्स क्लब्स होते हैं एकेडमीज में, तो आईएमए का जो योगा क्लब था, उस योगा क्लब में वो जो है मिड टर्म ब्रेक के दौरान जो है आ रखे थे यहाँ पे एक योगा रिट्रीट चलाने के लिए. तो मेरे अंदर भी, बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज अ फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर, आई आल्सो वाज इंटरेस्टेड इन इट. आई अटेंडेड दैट. व्हेन आई अटेंडेड दैट, then I came close to him, and he also came close to me, and he accepted me. He accepted me as a person who is a potential disciple. As a potential disciple, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया. और फिर मैं उनके पास जो है बैठ करके बहुत, मैं अपने मन का, मैंने उनको जो है वो पीड़ा पीड़ा व्यक्त की. उनको उनको मैंने अपना पेन बताया, और मैंने यही कहा कि ये सच जो है स्वामी जी, ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है. इसने मेरे को बहुत तंग कर रखा है. मैं क्या करूं? मैं सच की वजह से जो है हर जगह जो है
संगठन की, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दी ऑर्गेनाइजेशन टू अपहोल्ड इट, इसको अपहोल्ड करे, इसको जो है एक नजीर एक एग्जाम्पल बनाए। लेकिन इससे तो संगठन को बहुत परहेज है, तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा, कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, सच को मत त्यागना। ये जो था, दूसरा जो था एनडीए प्रेयर के बाद, ये दूसरा एक समय था जबकि वैलिडेशन मेरे को मिला। देन आई गॉट कनेक्टेड विद द डिवाइन लाइफ सोसाइटी इन ऋषिकेश, और मुझे फिर वहां पे बड़े प्रख्यात जीवन मुक्त संत थे, जिन्होंने कि स्वामी शिवानंद जी के बाद स्वामी चिदानंद, तो उन्होंने जो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी की जो है वो अध्यक्षता करी, और उन्होंने फिर मुझे जो है वो गुरु दक्षिणा दी, गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र। ये गुरु मंत्र उन्होंने मेरे को दिया 1994 में, 94-95 में। तो मेरा जो पीरियड था ना नेहरू, जो मेरा ये 7 साल का पीरियड था, इन विच आई वॉज बीइंग पुश्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आई वॉज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, मेरे को गुरु मंत्र मिल गया था। तो स्वामी जी ने मुझसे ये कहा, तू सिर्फ गुरु मंत्र के ऊपर ध्यान दे, बाकी और किसी चीज के ऊपर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कर। तो मेरी रूटीन ये थी, 4 बजे सुबह मैं उठता था, आई यूज टू डू 2 आवर्स ऑफ मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, अपने गुरु मंत्र को जो है उच्चारण करता था, और किताबों, जो धार्मिक आध्यात्मिक किताबें थी उनको मैं पढ़ता था। आई यूज टू रीड स्वामी शिवानंद, स्वामी चिदानंद, स्वामी कृष्णानंद, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी अध्यात्मानंद, ये जितने भी थे हमारे डिवाइन लाइफ सोसाइटी के प्रख्यात संत, इनकी जो लेखनियां थी, इनकी जो किताबें थी, उनका मैं अध्ययन करता था। उसने मेरे को शक्ति दी। तो किसी ने, कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी मेरू जो है, मेरू हम स्पाइन को बोलते हैं, तुम्हारी मेरू में जो है गुरु बैठा हुआ है, गुरु तुम्हारी मेरू को जो है वो अपराइट रखेगा, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। तो फिर उसके बाद जैसा आपको मालूम है कि लड़ाई लड़ते 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 फिर मुझे अपना लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिला, फुल कर्नल का रैंक मिला, ब्रिगेडियर का रैंक मिला। फिर उससे मैं सेवानिवृत्त हुआ 2008 में। तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स वगैरह तो ऑर्गेनाइज किए, बाकी कुछ भी किया। और उसके उपरांत जब मैं आया, तो एक तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहूंगा, ये मैंने एक किताब जो है ये लिखी मैंने, पैशन फॉर करेज, विनर्स क्रीड। तो इसका शीर्षक मैंने बच्चों को इसलिए दिया, उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास जुनून है, जज्बा है, हिम्मत दिखाने का, मॉरल करेज, नैतिक करेज दिखाने का, देन यू बी रेस्ट अश्योर्ड कि यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, विक्ट्री विल बी योर्स, जीत तुम्हारी ही होगी, ये निश्चित लिखा हुआ है। आपको सिर्फ वो ताकत दिखानी है। A passionate person is a person who is totally involved in madness. Passion is another word for madness. जुनून, एक जुनून है। नैतिक साहस जो है, और यहां पे मैं एक और चीज जो है, शारीरिक साहस और नैतिक साहस, महात्मा गांधी ने बड़ा अच्छा इसकी व्याख्या करी है। उन्होंने ये कहा कि शारीरिक साहस जो है एक बड़ी स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया है किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन से ऊपर उभरने की। एक थ्रेटनिंग सिचुएशन आई, यू हैंग ऑन टू फियर फॉर अ सेकेंड लॉन्गर एंड दैट टर्न्स इनटू करेज। लेकिन मॉरल करेज जो है इज अ वेरी वेल थॉट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, wherein in your own mind you have analyzed the consequences of your action. You know that this one action of yours will be the end for you. kaput, खत्म हो जाएगा तू। अगर तू जो है सत्ता अधिकारी के खिलाफ जो है तू खड़ा हो गया, चाहे तेरे कुछ भी सिद्धांत हो, तो उसके पास ये शक्ति है, ये ताकत है कि वो तेरा जो करियर जो है,
उसको खत्म कर दे, he'll finish you. But yet you decide to act on the side of truth and what is right. So therefore moral courage को महात्मा गांधी ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है. और महात्मा गांधी विदाउट बीइंग एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कोई उनके पास औहदा नहीं, कोई उनके पास पोजीशन नहीं, और उसके उपरांत भी क्या पावर थी उनके पास, क्या पावर वील्ड करते थे वो. तो ये सारी बातें हैं. अभी भी देश में है. अभी 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 भी, बिल्कुल अभी भी देश में. अभी तो भी सबको अब माथा टेकने वहीं ले जाते हैं. हाँ, तो अब यही मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद फिर जो है मैंने फिर एक और किताब जो है उसको लिखा. ये 540 पेज की किताब है, हिंदी और इंग्लिश में. ये एसेंशियली मेरे फिजिकल ट्रेनिंग कोड के विषय में, के बारे में, हाँ उसके विषय में है, जिसका फ्लायर मैंने आपके साथ शेयर किया है. तो मैं अब देहरादून में हूँ. फिजिकल फिटनेस इज कमिटमेंट. मेरे साथ एक ये जुनून है, उसको मैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही है. ऐसा नहीं, मैं इसको नित्य जो है मतलब एवरी डे आई डिवोट एटलीस्ट 2 hours टू माई सेल्फ. दिस इज माई टाइम. ये समय मेरे से कोई नहीं ले सकता है. मैं अपना बाकी समय जो है वो घर गृहस्थी, समाज, परिवार, बाकी जिम्मेदारियां जो हैं उनके लिए दे सकता हूं. पर ये 2 घंटे का समय मेरा अपना है. एंड आई एम इनटू लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ राइटिंग. आपके साथ में हर दिन जो है कुछ ना कुछ जो मेरे मन के अंदर विचार आते हैं उन विचारों को मैं व्यक्त करता हूँ, बोलता हूँ. इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज आई थिंक इट इज गिव बैक टाइम टू सोसाइटी, पे बैक टाइम टू सोसाइटी. और अगर इतना कुछ जो कुछ मैं समझता हूँ मेरे अनुभव हैं, अगर मैं ये शेयर नहीं करूंगा तो फायदा क्या है फिर. आई मस्ट शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद योर स्टूडेंट्स. जो भी बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, इस बात को सुन रहे हैं, तो इफ इट विल बेनिफिट देम, इफ इट विल मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ, आई थिंक इट इज वंडरफुल. आप कितना भी अध्ययन कर लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर उसको आप अपने जीवन में नहीं उतारते हो, कहते हैं दी बिगेस्ट चैलेंज इज व्हेन द रबर टचेस द रोड. उससे पहले आप कितनी ही मनगढ़ंत जो है वो आप संकल्प करें, आप अपने लिए वादे करें, आप अपने लिए वाउज करें, लेकिन असली चीज है कि अगर आपने 100 संकल्प किए हैं और उन 100 संकल्पों में अगर आपने एक भी संकल्प जमीन पे उतार दिया है तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो जमीन पे उतारना जो है, दैट मीन्स यू हैव टू बिलीव इन इट, यू हैव टू जेन्युइनली बिलीव इन इट. तो मैंने भी जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है कि पैशन फॉर करेज विनर्स क्रीड, तो ये मेरे अंदर अब एक स्वाभाविक मेरा स्वभाव है. कोई भी चुनौती वाली चीज होती है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर अपनी बात उनके सम्मुख जो है खुल के रखनी है तो आदर सम्मान के साथ आप अपनी बात को कह सकते हैं. ये नहीं है कि आप जो है अपनी बात को कहने के लिए आपको जो है वो भाषा की मर्यादा, भाषा की जो गरिमा है उससे जो है हट करके अपनी बात को कहना है. आपकी आवाज भले ही बड़ी सॉफ्ट हो, बड़ी मुलायम हो, मखमल समान हो, लेकिन आपका कंटेंट जो है, जो आपकी तर्क है, जो लॉजिक है, जो बात आप कहना चाहते हैं, उसके अंदर जो है वो तथ्य मजबूत होना चाहिए. तब वो जो बात जो है वो बहुत बुलंद बन जाती है. और आखिरी में बच्चों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो अंतरात्मा है ना, आवाज, आपकी कॉन्शियंस जिसको हम कहते हैं, ये सबसे पावरफुल वॉइस है आपके अंदर. इसके बराबर ज्ञानी और जानकार इस दुनिया में और कोई है ही नहीं. when it comes to decide to do a particular thing, when you are in doubt as to what is right and what is wrong, ये आवाज आपको पहले ही मर्तबा, in the first instant itself, it will tell you what is right and what is wrong. Thereafter you prevail your mind upon this voice. ये वॉइस पहले बड़ी वीक होती है, बड़ी हल्की होती है. माइंड जो है हमारा मनुष्य का, इसके अंदर जो है सारी शैतानी जो है, इज द माइंड इज द बिगेस्ट फ्रेंड एंड द वर्स्ट एनिमी.
इट डिपेंड्स एज टू हाउ यू कल्टिवेट इट। अब ये जब इसके ऊपर हावी हो जाता है, इस आवाज के ऊपर, तो स्वाभाविक है इस बेचारी का जो है कोई और समर्थन करने वाला नहीं होता है, ये चुप हो जाती है। इसके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है फिर इट कीप्स क्वाइट। तो लोग जो है अहंकार से प्रेरित हो जाते हैं। तो इसकी जो ढाल है, आपके कॉन्शियंस की जो ढाल है, वो है आपकी सिंसियरिटी, कि आप किस सिंसियरिटी से किसी चीज पे विश्वास करते हैं और किसी चीज को करने के लिए आप तत्पर हैं, इच्छुक हैं। और क्या आपके अंदर रेक्टिट्यूड है, नैतिकता आपके अंदर, किस स्तर की नैतिकता आपके अंदर है, ये इस कॉन्शियंस की ढाल बन जाती है। जीवन में जो आपको पत्ते खेले जाएंगे ना, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, और ना ही खेल जो है वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हों, ये बात निश्चित है कि अगर आपने अपनी अंतर आत्मा की आवाज को बुलंद रखा, तो आप इस संसार में कहीं भी जाएंगे, अपने सर को सम्मान के साथ खड़ा होकर के, उठा करके आप जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मनुष्य के लिए। उसकी रेपुटेशन, उसका सम्मान जो है वो सबसे अहम है। कहते हैं ना कि रेपुटेशन इज व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, कैरेक्टर इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो ये चरित्र अगर आपने निर्माण करना है, कई लोग तो, कई लोगों के विषय में तो ये कहा जाता है कि अगर उनकी रेपुटेशन और कैरेक्टर एक दूसरे को अगर किसी बाजार में मिले तो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रेपुटेशन भिन्न है बिल्कुल। लोगों के सामने आप जो है बहुत बढ़िया है, अंदर से आप बिल्कुल उसके विपरीत। तो ये दोनों जो है, कैरेक्टर और रेपुटेशन जो है, ये एक समान होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इट शुड बी। ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा नेहरू, आपने पुरानी यादें तरोताजा कर दी। बच्चों के साथ जो है अगर उन्होंने मुझे सुना है तो बड़ा अच्छा लगा। Sir, then it remains for me to thank you for sparing your time and enlightening all of us with your real life experiences. Because, of course, you know, theory we understand, principles we understand, how you lived with the principles and adjusted with the society and your life, including when your father advised you and you stood with your rationality and with your values. It was very nice hearing you, sir. And we'll be looking forward to further interaction with you on 62 war as also the Kargil war in due course. उसके विषय में भी बात करेंगे। So thank you so much, sir. Jai Hind, sir. Nehru, it was a pleasure to talk to your students and it was great connecting with them. और जब हम युवाओं के साथ बात करते हैं तो हमारे अंदर भी ऊर्जा आ जाती है और हमको भी अपने जो पुराने दिन जो हैं वो याद आ जाते हैं। और मेरा अंतिम शब्द इन बच्चों के लिए यही है कि जज्बे के साथ अपनी जिंदगी को जियो, पैशन के साथ जियो। जिस चीज को मन चाहता है, मन मत मारो। गलतियां होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली लीडर वही होता है जिसके अंदर जज्बा होता है। जिसके अंदर जज्बा नहीं है वो कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। ही कैन नेवर बी अ लीडर। तो अगर ये बच्चे जो हैं इससे कोई सीख ले लें, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, सिर्फ गलतियों में एक चीज का ध्यान रखना कि जो मैंने सेंस ऑफ राइटियसनेस आपको बोला था, उस वो लक्ष्मण रेखा है, उसको कभी मत पार करना। नेवर क्रॉस दैट एंड जस्टिफाई योरसेल्फ। वो जस्टिफाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बाकी वील कनेक्ट जब आप मौका देंगे और विषयों के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Jai Hind. Thank you so much.